Okay, so good morning everyone, right? I welcome you all to this class, right? And आज देखिए हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे and we'll be talking of NPSI or optional. The next topic which we will be covering, right, is the India and the major power, right? India and the major power. अगर आप ये सिलेबस का टॉपिक देखेंगे, राइट, यू विल फाइंड इन पेपर 2, ठीक है, वहाँ पे ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, मेजर पावर्स. And in this particular topic we will be discussing India's relationship with the major powers, right? For example, we'll be talking about relationship with China, right? We will be talking about the relationship with USA. We'll be talking about the relationship with Russia, right? We'll be talking about the relationship with Japan, राइट. सो ये जितनी भी आपकी मेजर मेजर पावर्स हैं, राइट, इन सब से एक एक करके हम लोग रिलेशन को डिस्कस करेंगे, विच अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंपल रीजन इज दैट डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं, सब पे जितने भी हैं, ठीक है, इन सब पे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. ठीक है, फाइन. सो इट इज रिकॉर्डिंग, ठीक है. तो what we'll be studying is the relationship with China, relationship with USA, Russia, Japan. In सब पे a direct question comes into play. Now today we'll be starting off with India and China, ठीक है, इंडिया एंड चाइना को यहाँ पे कवर करेंगे, राइट. सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक कॉल्ड एज इंडिया एंड चाइना एंड लेट अस अंडरस्टैंड इंडिया चाइना रिलेशनशिप को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, राइट. फाइन. नाउ India China relationship especially has been you can say very very important in recent times because of we see that the Chinese intrusion, right, along the borders. We all saw the Galwan Valley incidents, right, and we see that how there is now a Chinese rise which is inevitable, right. China is going to replace USA as the next superpowers within few years, right. We see a decline of the US hegemony and the rise of China, right. So China it becomes very very important and इसको हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, right. Now if I talk about China, then you all know that it is our largest neighbor, right. ये हमारा largest neighbor है, right. And ठीक है, it is the top two partner when it comes to India, right. USA China इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा ट्रेड हमारा होते रहता है with respect to one country, ठीक है. इट इज़ अ सप्लायर ऑफ मैनी यू कैन से इम्पॉर्टेंट यू कैन से सप्लाईज like you will say active pharmaceutical ingredients, ठीक है, many type of you can say the electronics etc, ठीक है, काफ़ी सारे cheap goods वगैरह चाइना से आते हैं, ठीक है, which becomes an important part of day to day life, right. ठीक है, तो चाइना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, चाइना इज़ नाउ बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रेड है हमारा इसके साथ, ठीक है, वी आर देयर एंड प्लस हमारे इनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं, ठीक है, राइट. सो फर्स्ट व्हाट आर द एरियाज वेयर यू फाइंड दैट इंडिया एंड चाइना आर कोऑपरेटिंग, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे यू फाइंड दैट देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ रिलेशनशिप. अभी सब डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एक एक करके, ठीक है, बट एक बार एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं. तो वी सी both are together when it comes to the international cooperation, right. इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो होता है, right, ठीक है, वहाँ पे you will be finding that both are together at various multilateral forums. For example, you'll talk about RIC, you'll talk about BRICS, right, you'll talk about G20, right, G20 summit में साथ है, ठीक है. You will be talking about SCO. How can we forget the SCO जिस पे अभी इस साल क्वेश्चन आया था in GS, right, ठीक है. You can talk about the East Asia Summit, right, East Asia Summit. तो इन सब पे आपको कॉरपोरेशन भी दिखाई देता है, ठीक है, राइट. प्लस व्हेन इट कम्स टू अभी हम लोगों ने डिस्कस किया होता व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, राइट, व्हेन इट कम्स टू ट्रेड यू फाइंड दैट ऑलमोस्ट 80 से 100 बिलियन डॉलर्स का बायलैटरल ट्रेड है, ठीक है. एंड इट इज़ इंडिया की तरफ से बहुत सारा ट्रेड डेफिसिट है, राइट, ठीक है. इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर एज कंपेयर टू व्हाट वी, ठीक है, इंडिया इंपोर्ट्स मोर एज कंपेयर टू व्हाट वी एक्सपोर्ट, राइट. तो काफ़ी सारा ट्रेड है, बहुत सारे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है. यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस चाइना में आपको दिखाई देती है, ठीक है. देन यू टॉक ऑफ बोथ ऑफ दीज
countries, they are talking about the new international economic order. ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इन द सेंस दैट दे वांट टू रिफॉर्म द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, राइट. अगर आप लोग बात करो जैसे वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म चाहते हैं, WTO में रिफॉर्म चाहते हैं, IMF में रिफॉर्म चाहते हैं, राइट. एंड वी सी ड्यू टू विच China and India, they are actually trying to challenge the hegemony of West. कैसे कैसे हेजिमनी को, कैसे सुपीरियर पावर को चैलेंज कर रहे हैं? बाय बिल्डिंग ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस. ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस कैसे? आप लोगों को सबको पता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट, AIIB, ठीक है. तो ये ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन, ब्रिक्स, ठीक, राइट. तो ब्रिक्स में जैसे CRA, कॉन्टेंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, ठीक है, दिस इज IMF को रिप्लेस करेगा. सो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस, यानी एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर भी बनाना चाहते हैं. तो वहां पे भी दोनों कॉपरेट कर रहे हैं, ठीक है, राइट. यू फाइंड एनर्जी सिक्योरिटी में बोथ ऑफ दीज कंट्रीज आर वर्किंग टुगेदर, क्योंकि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एशियन प्रीमियम. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एशियन प्रीमियम? एशियन प्रीमियम इज बेसिकली जो लोग ये वेस्ट एशिया वाले हैं, व्हाट डू दे डू, जो ये अपना ऑयल सेल करते हैं एशिया को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, तो एशिया से ज़्यादा पैसा लेते हैं. दे अप्लाई अ स्ट्रिक्ट प्रीमियम, ठीक है. तो इसके लिए दे आर लुकिंग कि किस तरीके से हम अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें, ठीक है, राइट. प्लस यू फाइंड दैट दीज डेज, ठीक है, चाइना इज एक्टिवली गोइंग टू बिकम द सुपर पावर with the foreign launching of Belt and Road Initiative. It is going for massive infrastructure development in the third world. So now it wants that in its neighbor, ठीक है, there should be peace. There should be peace and you can say tranquility in around its neighbor. And that is why you see India and China, they are together cooperating on what? Terrorism. Because China is also facing the threat of extremist output in the Xinjiang provinces. बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है. Xinjiang province वगैरह में जहाँ पे युगर मुस्लिम्स वगैरह का बहुत खतरा है, ठीक है, राइट. तो वहाँ पे यू फाइंड दैट चाइना is having this threat. So you find cooperation on SCO rats, ठीक है. SCO rats पे it's a prime example of this, ठीक है, राइट, ठीक है. प्लस यू फाइंड नाउ बोथ दीज कंट्रीज आर वर्किंग टुगेदर ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है. तो क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, राइट. तो इन सब में यू विल फाइंड दैट दीज आर द एरियाज और कॉपरेशन, और यू कैन से एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, राइट. तो आपको काफ़ी सारा कन्वर्जेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, काफ़ी सारा कन्वर्जेंस दिखाई दे रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यू फाइंड BCIM, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, ठीक है, डेवलप हो रहा है, ठीक है. तो काफ़ी सारा यहाँ पे आपको कॉपरेशन दिखाई देता है, ठीक है, एनर्जी में, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ट्रेड, ठीक है, इंटरनेशनल कॉपरेशन, ठीक है, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंटी टेरर, एंटी पायरेसी, ठीक है, राइट. क्योंकि चाइनीज़ के भी शिप्स कहाँ से निकलते हैं? वहीं निकलते हैं आपके थ्रू द मलक्का स्ट्रेट, ठीक है. तो चाइना के लिए भी क्या है? मलक्का का डिलेमा है, राइट, जो सिंगापुर के पास से यहाँ से निकलता है, ठीक है. तो इसके लिए यहाँ पे भी खतरा होता है, ठीक है, क्योंकि लुटेरे तो चाइना वालों को भी लूटेंगे ना, ठीक है, राइट. देन यू फाइंड दैट इंडिया एंड चाइना के बीच में काफ़ी सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी है. काफ़ी सारा बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऐसे मत लिखो, काफ़ी सारा डाइवर्जेंस भी है, ठीक है, वेयर द इंटरेस्ट यू कैन से आर वेयर द इंटरेस्ट आर सेपरेटिंग अपार्ट. अब क्या है? डाइवर्जेंस लिख लो, कॉन्फ्लिक्ट लिख लो, ठीक है, सब एक ही बात है, ठीक है. यू फाइंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स, हमारे चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, राइट. एंड वी विल डिस्कस दिस, डोंट वरी, इन डिटेल. यू फाइंड इट इन द लद्दाख रीजन, ठीक है, इन जो आपका अक्साई चेन है, लद्दाख है, ठीक है. देन यू फाइंड इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश. चाइना डजेंट बिलीव दैट अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है. यू फाइंड रिसेंटली टाइम्स अगेन, ठीक है, क्राइसिस हैव एस्केलेटेड, डोकालाम क्राइसिस, ठीक है. यू फाइंड दैट
रिसेंटली गलवान वैली इंसिडेंट्स, ठीक है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है, राइट राइट। देन यू फाइंड दैट बोथ ऑफ दीज कंट्रीज आर in a geopolitical struggle both to dominate in Asia as well as to dominate in world, ठीक है, राइट। एंड यू फाइंड दैट जैसे इंडिया इज सीन एज एन एलाई ऑफ द वेस्ट कैंप, राइट, प्राइमरीली यूएसए, ठीक है, जापान इनके साथ, ऑस्ट्रेलिया इनके साथ है, जबकि चाइना इज सीन एज एन एलाई विथ दैट ऑफ रशिया, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, ये लोग का एक अलग ग्रुप है, ठीक है। सो देर इज अ राइवलरी, ठीक है, राइट। इंडिया एंड चाइना बेसिकली आर इन व्हाट, दे आर इन ऑपोजिट कैंप्स ऑफ पावर, ठीक है, राइट, दोनों ऑपोजिट कैंप्स में। फिर यू फाइंड चाइना, ठीक है, इट डजेंट गिव इंडिया एंट्री इनटू यूएनएससी, ठीक है, इट डजेंट गिव एंट्री इनटू एनएसजी, इंडिया की एंट्री को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, राइट। चाइना हैज कॉन्स्टेंटली सपोर्टेड पाकिस्तान, राइट। यू फाइंड दैट especially the China Pakistan economic corridor that passes through Pakistan occupied Kashmir, which is an Indian territory, so that violates India's sovereignty, इंडिया की सॉवरेनिटी को डायरेक्टली खतरे में, ठीक है, इट इज डायरेक्ट चैलेंज, ठीक है। यू फाइंड एक तरफ ट्रेड तो हो रहा है बट देयर इज अ मैसिव मैसिव ट्रेड इम्बैलेंस, मैसिव ट्रेड इम्बैलेंस है, ठीक है, 50 से 60 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट है, राइट, ठीक है। चाइना कॉन्स्टेंटली सपोर्ट्स पाकिस्तान एंड इट्स यू कैन से इंसर्जेंट एक्टिविटीज इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर में इंसर्जेंसी फैलाने में चाइना ही तो मदद कर रहा है, ठीक है। हाफिज सईद, ठीक है, राइट, सिमिलरली परेश बरुआ, इन सबको चाइना छुपा के रखता है, इट गिव्स सेफ हेवेंस टू ऑल दीज टेररिस्ट, ठीक है, राइट। तो ये सब क्या है, यू फाइंड अ लॉट ऑफ यू कैन से डिस्प्यूट्स आर देयर, ठीक है। इंडिया हैज enjoined द बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव्स, ठीक है। यू फाइंड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर डिस्प्यूट्स एज वेल, अभी हम डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड्स टू ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा, ठीक है, राइट, ये है। यू फाइंड द इशू ऑफ दलाई लामा, ठीक है, चाइना अक्यूजेस इंडिया ऑफ गिविंग दलाई लामा सेफ एग्जाइल, ठीक है, राइट, एंड ड्यू टू विच, ठीक है, द रिलेशन आर नॉट वेरी गुड, ठीक है, राइट। चाइना रिसेंटली क्रिटिसाइज्ड द मूव ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑन कश्मीर, जो 370 आर्टिकल को एब्रोगेट किया था, राइट। तो दिस हैज लेड टू द गलवान वैली क्राइसिस, राइट, ये सब कुछ बेसिकली जो था। तो यू कैन कोट दिस, ठीक है, यू कैन कोट दिस कि कैसे, ठीक है, कैसे आपको यहाँ पे जो कंटेंशन है वो क्लियर कट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राइट। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट एक, ये तो हम लोगों ने बात कर ली, अब हम लोग एक एक इश्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन एट द लास्ट वील टेक एन ओवरव्यू ऑफ द रिलेशन, ठीक है। सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद फर्स्ट बिग इशू जो हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिसपे क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है, एंड दैट इज द बॉर्डर डिस्प्यूट्स। We need to discuss the border disputes when it comes to the India and China, ठीक है। So the first, अगर हम लोग स्टार्ट करें, if I start off एक ट्रेस हिस्ट्री करें, तो when 1948 both India and China established relationship, it was India China relationship was at peak, right, it was at peak, right, and ठीक है, but in 1950 what China did, China captured Tibet, right,
चाइना कैप्चर्ड टिबेट। नाउ ठीक है, मैप अगर आपको थोड़ा भी पता है, ठीक है, तो दिस इज नेपाल, ठीक है, एंड दिस पार्ट इज टिबेट, एंड देन इज द दिस इज द मेन चाइना, ठीक है। सो एंड दिस वॉज बेसिकली अपना उत्तराखंड वगैरह और ये इंडिया वगैरह यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, दिस इज बेसिकली इंडिया। सो अभी तक इंडिया एंड चाइना weren't शेयरिंग बॉर्डर्स, बट इन 1950 what happened when China captured this Tibet, then it started sharing its borders with India, and you all know, yeah, ठीक है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, राइट, कौटिल्याज मंडल सिद्धांत, कौटिल्याज सप्तांग थ्योरी, ऑल दैट थिंग हम लोगों ने काफी बार डिस्कस किया है, ठीक है। नेबर्स आर आवर नेचुरल एनिमीज, एंड दैट कैप्चरिंग ऑफ टिबेट led to the changing of the geopolitical changing of geopolitical, ठीक है, you can say geopolitical rivalry, ठीक है, or you can say it changed the geopolitical realities of South Asia forever। इसने हमेशा के लिए जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को चेंज कर दिया, ठीक है, राइट। नाउ इंडिया एंड चाइना डायरेक्टली शेयर्ड बॉर्डर, ठीक है, एंड देयर विल बी सम काइंड ऑफ एक्सकर्जन, सम काइंड ऑफ, वो तो होगा ही होगा। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत आप सबको पता है, नेबर्स आर आवर नेचुरल एनिमीज, राइट। सो अर्लियर, ठीक है, टिबेट के बाद नेपाल था, नेपाल के बाद इंडिया था, तो काफ़ी दूर था इंडिया चाइना हमसे। बट नाउ यू फाइंड दैट China started sharing direct borders with us. Plus, these three countries, Nepal, सिक्किम, उस टाइम सिक्किम आज़ाद नहीं था, प्लस भूटान, they became very important for India, क्योंकि if they get manipulated, ठीक है, by China, इट्स गेम ओवर। डायरेक्ट बॉर्डर्स हम लोग टच करने लग जाएंगे इन मेजर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। सो दे बिकेम व्हाट डू यू कॉल्ड एज द फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्योंकि पहले क्या था, पहले था इट वाज इंडिया, देन ये बफर स्टेट्स, ठीक है, देन उसके बाद टिबेट एंड देन चाइना। दैट वाज हाउ द सिचुएशन वाज, बट नाउ इट वाज जस्ट वन स्टेप अवे, ठीक है। Now China became a part of South Asian politics, क्योंकि अब it started touching borders with India, right, ठीक है, right, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, this is very very important, ठीक है। तो how Chinese capturing of you can say how the Chinese capturing of Tibet led to changing geopolitical realities forever, ठीक है, right, तो ये हुआ। अब क्वेश्चन क्या था, ठीक है, द क्वेश्चन वॉज इन फ्रंट ऑफ नेहरू जी कि भाई क्या करें, ठीक है, शुड वी गो फॉर अ काइंड ऑफ ऑफेंस और शुड वी गो फॉर अ डिफेंस, ठीक है, शुड वी बी ऑफेंसिव, शुड वी बी डिफेंसिव, ठीक है। तो नेहरू जी ने कहा यार, ठीक है, वी विल गो फॉर अ डिफेंसिव, we will go for a defensive stance, because Nehru ji was an idealist, right, he was an idealist, and therefore he believed that India China के ऐसे कोई aggressive intentions नहीं है, and he believed that India and China can cooperate, right, he believed that China will not show aggression, and if we appease China, if we appease China by accepting Tibet, right, तो क्या हो जाएगा, तो ठीक है, राइट, चाइना आगे नहीं बढ़ेगा, एक बार हमने अपीजमेंट कर दी, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कर दी, ठीक है, ये चीज़ हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया। प्लस, ठीक है, चाइना को खुश करने के लिए, प्लस नेहरू जी ऑल्सो न्यू कि भाई अब ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं आपके, ये जितने भी ये हैं, ये छोटे छोटे, तो इनके साथ क्या करें, इन छोटे छोटे कंट्री के साथ, स्टार्ट ऑफ विद
treaty of peace and friendship, ensure that they remain our friends. ठीक है, they remain our friends. So he went for a treaty of peace and friendship with Nepal, Bhutan, Sikkim. ठीक है, right, so that चाइना को थोड़ा तरीके से कंट्रोल किया जा सके. ठीक है, right, and फाइनली ठीक है व्हाट हैपेंड वाज, ठीक है, नेहरू जी ने इनके साथ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कर ली. ठीक है, एंड 1954 में पहले नेहरू जी ने ट्राइड इट्स बेस्ट कि थोड़ा बहुत ऑफेंस किया जाए. ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन करी. ठीक है, थोड़ा सा यूएन में चाइना के एनेक्सेशन को कंडेम करने की कोशिश करी. ठीक है, बट देन दैट फेल्ड. तो फिर व्हाट डिड नेहरू जी थॉट यार एक काम करो, आइडियलिस्ट ही सही है. एंड ही वॉज प्राइमरीली एन आइडियलिस्ट ऑल्सो, सो ही वेंट फॉर अ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. ठीक है, तो बेसिकली नेहरू जी की पॉलिसी क्या थी, द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. ठीक है, व्हाट वाज दिस पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट? द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट बेसिकली वाज, ठीक है, दैट इफ वी अपीज चाइना बाय एक्सेप्टिंग टिबेट, ठीक है, इफ वी अपीज चाइना बाय एक्सेप्टिंग टिबेट, then China will not come ahead forward and वो वहीं का वहीं पीस रह जाएगा. ठीक है, and policy of appeasement was formally accepted in the treaty of Panchsheel. पंचशील अग्रीमेंट साइंड होता है इन 1954, राइट. अब ट्रीटी ऑफ पंचशील में इट रिकग्नाइज्ड कि हाँ भाई टिबेट का एनेक्सेशन सही है, टिबेट एज अ पार्ट ऑफ चाइना, ये एक चाइना का इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा. दिस इज व्हाट वाज थॉट इन ट्रीटी ऑफ पंचशील विद द एक्सपेक्टेशन दैट चाइना विल नॉट मूव साउथवर्ड्स. ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इट वाज अ ट्रीटी विच वाज एम्ड एट सॉल्विंग ऑल दी सिक्योरिटी डिलेमा जो भी है. ठीक है, जितना भी सिक्योरिटी डिलेमा है इन द रीजन, सिक्योरिटी डिलेमा ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज व्हाट वाज दिस ट्रीटी एमिंग टू लुकिंग टू सॉल्व. ठीक है, यहां तक ये चीज हो गया था. ठीक है, राइट. सो दिस इज व्हाट द ट्रीटी ऑफ पंचशील वाज. ठीक है, मतलब ठीक है कि हमने भाई अपीजमेंट की पॉलिसी कर ली. ठीक है, राइट, एंड पंचशील ट्रीटी. ठीक है, एंड इंडिया recognized sovereignty of China on Tibet. ठीक है, earlier due to British, India was having you can say India was enjoying special rights. ठीक है, trading rights with Tibet. ठीक है, वो भी छोड़ दिए, राइट. ठीक है, and it was said that no country will intervene in each other's affair. ठीक है, मतलब इस टाइप की इंडिया को कुछ नहीं मिला. It is said treaty of Panchsheel was a very bad treaty because India got almost nothing. ठीक है, राइट. इंडिया एक्सेप्टेड टिबेट एज द डोमेस्टिक अफेयर. ठीक है, राइट, और बाकी बातें तो वही चल रही है. ठीक है, बोथ साइड विल रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी, बोथ साइड विल रिस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, वही सब गुडी गुडी पॉइंट्स. और चाइना को क्या मिला? पूरा टिबेट. ठीक है, नॉन अग्रेशन. ठीक है, ये आप सबने पढ़ा होगा ट्रीटी ऑफ पंचशील में. ठीक है, राइट. डोंट वरी, जब हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं तो हमने, ठीक है, जो नए आए हैं उन लोग को तब हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, बाकी को तो पता है. ठीक है, तो नॉन अग्रेशन, ट्रीटी ऑफ, ठीक है, सॉवरेनिटी, ये सब चीज़ें रिस्पेक्ट करी जाएंगी. ठीक है, एंड बेसिकली, ठीक है, इंडिया गेव अप अ लॉट ऑफ इट्स एडवांटेज. काफ़ी एडवांटेजियस पोजीशंस जो थी वो चली गई. ठीक है, राइट. इंडिया वॉज अ पुअर बार्गेनर. अच्छे से हम नेगोशिएट नहीं कर पाए. वी लैक्ड स्ट्रैटेजिक कल्चर, क्योंकि भाई आप पूरी टिबेट दे रहे हो, मान रहे हो, तो इंडिया कुड हैव सेड कि अक्साई चीन इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया कुड हैव सेड कि भाई चाइना एक्सेप्ट पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश एज अ पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो अगर ये कर सकते, हम अपने डिस्प्यूट्स पहले सॉल्व कर सकते थे. ठीक है, बट वी डिडंट गो फॉर इट. हालांकि उस टाइम तक ये पता भी नहीं था कि ये अक्साई चीन इंडिया चाइना विल क्लेम, क्योंकि इंडिया ने मान के बैठा था बट चाइना से कभी डिस्कस नहीं करा था, राइट. ठीक है, इट इज़ लाइक ए ने मान के बैठा है कि बी के ये जो प्रॉपर्टी है वो तो इसी की है, कोई इसके पास प्रॉपर्टी है,
बट बी से कभी डिस्कस नहीं करा, बट एक दिन बी ने बोल दिया ये तो मेरी है, और ये अभी में लड़ाई शुरू हो गई। सेम हैपेंड विथ क्या, अक्साई चिन। ट्रीटी ऑफ पंचशील हो गई तो तिब्बत क्या चला गया, दिस वॉज तिब्बत, ये चला गया चाइना के पास। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज गेम चेंजेस, ट्रीटी खत्म, चाइना ने पब्लिश करा न्यू मैप्स। अब यहां से असली गेम शुरू होता है। इट एंड इन दैट मैप इट इट पब्लिश्ड लाइक दिस, ठीक है, ये नेपाल है, और इट पब्लिश्ड मैप लाइक दिस कि ये पूरा चाइना है, मीन्स ये भी और ये भी, पूरा पूरा अरुणाचल प्रदेश पूरा पूरा इसको क्लेम करती है। अब भाई तिब्बत की डील हुई थी सेट, ठीक है, तिब्बत की डील हुई थी सेट, तिब्बत तो ये था, चाइना ने कहा नहीं सर तिब्बत ये था, तिब्बत ये था। ले भाई अब शुरू होता है गेम, दैट इज हाउ द गेम बिगिंस। चाइना पब्लिशेस मैप्स विच क्लेम्स क्या रीजन है, लद्दाख, विच क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश as its own part plus some areas of Uttarakhand as well, ठीक है, right, and it refused to accept any kind of यहाँ पे मैकमोहन लाइन, ठीक है, अभी हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन का कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब ये शुरू हो गया, ठीक है, राइट, ठीक है। अब 1954 की ट्रीटी से तिब्बत हम दे चुके थे, उसके बाद उन्होंने चाइना ने धोखा कर दिया, मैप में अक्साई चिन को, लद्दाख को अक्साई चिन डिक्लेयर कर दिया, राइट, बहुत सारा पार्ट क्लेम करने लग गया, ठीक है, राइट, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, ठीक है, राइट, जैसे ही ये चीज हुआ, ठीक है, राइट, तो ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, क्या बोलते हैं, तो जैसे ही ये चीज होगा, ठीक है, 1957 में मतलब, ठीक है, ये चीज हुई, ठीक है, एंड there were reports that China has started building highways in this region, क्योंकि see this was an inhabited land, it is a vast desert area जो लद्दाख वगैरह का है, ठीक है, and what happened was, ठीक है, कि भाई it started building highway known as the Karakoram highway, इसने यहाँ पे काराकोरम हाईवे बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, राइट, ठीक है, एंड अब व्हाट हैपेंड, अब जैसे ही ये चीज हुआ, ठीक है, कि भाई काफी सारा रोड बन रहा है एक्साई चिन में, ठीक है, काराकोरम हाईवे बन रहा है, ठीक है, एंड भाई नेहरू जी की अच्छे से लोगों ने धुलाई करी इन पार्लियामेंट, अच्छे से डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म मिला, ठीक है, कि क्या कर रहे हो तुम, इतनी टेरिटरी दे दी है, वो भी एक्सेप्ट कर लिया है, अब और लोग ये बना रहे हैं, करो कुछ। ऑब्वियसली जैसे ही प्रेशर पड़ा, नेहरू जी की हालत खराब, नेहरू जी ने कहा भाई देखो लेट्स गो फॉर अ फॉरवर्ड पॉलिसी, एंड ही ऑर्डर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री बेसिस, ठीक है, एंड ही वेंट की फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब ट्रूप्स को चाइना की साइड में जा जाके थोड़ा सा एक्टिव पेट्रोलिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है, इस तरीके से बोलना स्टार्ट करा, ठीक है, तो दिस वाज व्हाट वाज द फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ नेहरू जी। बस चाइना तो चाह ही रहा था कि ये कुछ हो जाए, और वही हुआ, ठीक है, this was interpreted by China as an imperialist attempt, and बस that led to 1962 का war, 1962 का यहाँ पे वॉर हुआ, ठीक है, राइट, एंड उसमें बहुत सारा आप देखोगे एरिया, ठीक है, कैप्चर्ड कर लिया अक्साई चिन का वगैरह का, ठीक है, एंड ठीक है, ठीक है, दैट यू कैन से, ठीक है, मतलब 1962 का वॉर हुआ, काफी सारा टेरिटरी यहाँ पे चली गई, ठीक है, बिफोर दैट फॉरवर्ड पॉलिसी, तो एक तो फॉरवर्ड पॉलिसी थी, और एक 1959 में, ठीक है, ठीक है, जब नेहरू जी को लगा यार हमने तिब्बत दे के गलती तो नहीं कर दी है, तो 1959 में इट ग्रांटेड दलाई लामा एज इनटू इंडिया एज असाइलम दे दिया, ठीक है, दलाई लामा रन्स द गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत फ्रॉम एग्जाइल, ठीक है, एंड ठीक है,
दैट इज द रीजन, ठीक है, दे वेंट फॉर अ 1962 का वॉर, ठीक है, एज अ प्री एम्प्टिव स्ट्राइक ऑन इंडिया, राइट, एंड इट वाज अ बैड डिफीट फॉर इंडिया, राइट, ठीक है, इट क्रिएटेड अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट, एक परमानेंट राइवलरी स्टैब्लिश हो गई, ठीक है, राइट, इन फैक्ट सर रशिया ऑल्सो डिड नॉट कम टू द एड, राइट, इन फैक्ट चाइना, रशिया, अमेरिका, दे ऑल केम टुगेदर, राइट, ठीक है। सर ये दलाई लामा से क्या हुआ? दलाई लामा, एक्चुअली दलाई लामा क्या थे, दलाई लामा के बारे में, दलाई लामा जो है वो तिब्बत के स्पिरिचुअल गुरु है, एंड दलाई लामा जो है, ठीक है, ये नहीं चाहते दैट तिब्बत शुड बी इंटीग्रेटेड विद चाइना, क्योंकि चाइना के अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हैं, ठीक है, दलाई लामा बुद्धिज्म के प्रीचर है, राइट, एंड ये ही बिलीव्स इन नॉन वायलेंस, ही बिलीव्स इन ऑल दिस, एंड यहाँ का कल्चर, तिब्बत का कल्चर रेजोनेट्स मोर विद इंडिया, सो ये वांटेड कि ईदर वी शुड बी इंडिपेंडेंट और वी शुड बी प्रो इंडिया, ठीक है, ठीक है, तो ही वांट्स कि दलाई लामा वांट्स कि भाई तिब्बत इंडिपेंडेंट रहे, हमारा अपना कल्चर है, एंड दीस चाइनीज पीपल दे आर ट्राइंग टू बी हैवी टोटलिटेरियन, ठीक है, राइट, सो ये लोग फालतू में आके, ठीक है, हमारे कंट्री को लूट लेंगे, ये कर लेंगे, तो हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, सो दलाई लामा वांट्स इंडिपेंडेंस ऑफ तिब्बत, ठीक है, चाइना वांट्स इंटीग्रेशन ऑफ तिब्बत, तो दलाई लामा एंड चाइना, दे आर एट, यू कैन से, ऑपोजिट टर्म्स, ठीक है, तो दलाई लामा रैन द गवर्नमेंट फ्रॉम एग्जाइल, ठीक है, और इंडिया गेव दलाई लामा असाइलम, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, सो राइट, सो ये है कहानी दलाई लामा की, ठीक है, दलाई लामा डजंट वांट, एंड दलाई लामा काफी इन्फ्लुएंस है तिब्बत में, ठीक है, लोग वहां पे उनको स्पिरिचुअल गुरु, अपना लीडर मानते हैं, ठीक है, तो ही कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ तिब्बत, ठीक है, एंड चाइना फियर्स कि भाई कहीं कोई रिवॉल्यूशन वगैरह तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, राइट, सो राइट, वी सी चाइना, रशिया, पाकिस्तान, they all came together, in fact just because of this humiliating defeat, पाकिस्तान को लगा कि अब तो हम भी लपेट सकते हैं इंडिया को, and it went for a war in 1965, right, although it lost badly, ठीक है, but still we find this, ठीक है, and India was, you can say, left stranded, ठीक है, right, but China withdrew and it declared a ceasefire, उनको जितना एरिया लेना था ले लिया, एंड एक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द 1962 वॉर, इट टार्निश्ड द इमेज, एंड जस्ट उसके बाद कहा जाता है कि उसके धक्के से बहुत बुरा लगा उनको, नेहरू जी की डेथ भी हो गई थी, राइट, ठीक है, तो राइट, ये वो काफ़ी बड़ा सदमा था, ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू कैन से द 1962 का वॉर एंड, ठीक है, अब राइट, तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा टेरिटरी जा चुका था, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से तो वो लोग रिसीड कर गए, देखो काफ़ी ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश का भी ले लिया था एरिया, बट अरुणाचल प्रदेश से वो लोग रिसीड कर गए, ठीक है, दे रिसीडेड, ठीक है, बट जो अक्साई चिन में था, यहाँ पे काफ़ी सारा एरिया अब उन्होंने परमानेंटली अपनी मिलिट्री स्टैब्लिश, तो दिस एरिया वॉज लॉस्ट, ये एरिया कंप्लीटली अब मिलिटराइज, मतलब चाइना के कंट्रोल में आ गए, ठीक है, अब देखो इसका रीज़न भी है, ठीक है, चाइना ने बहुत स्ट्रैटेजिकली ये सोच समझ के ये वाला इंडिया का तो एरिया वापस कर दिया, बिकॉज दिस एरिया हैज नो सिग्निफिकेंस, जियो स्ट्रैटेजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट दिस एरिया दिस एरिया हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस when it comes to चाइना, ठीक है, राइट, जो पूरा का पूरा अगर आप देखोगे, इफ दिस इज इंडिया, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस मैप, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, राइट, एंड इस टाइप से अगर आप देखोगे, ये देखो ये, ठीक है, तो अब जो भी ये आपका वेस्ट एशिया है, ठीक है, यहाँ से आता है ऑयल, तो पहले ऐसे घूम के जाता था, पूरा मलक्का स्ट्रेट से पास होके ऐसे जाता है, ठीक है, एंड इट एंटर्स चाइना, ये रहा चाइना, ठीक है, इस टाइप से चाइना एंटर करता है, ठीक है, बट ठीक है, और ये यहाँ पाकिस्तान वगैरह है, दिस इज वेयर द पाकिस्तान इज, इस टाइप से है, ठीक है, नाउ अगर ये एरिया आपके पास है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट डेजर्ट टाइप का एरिया है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ से ग्वादार पोर्ट से आएगा,
एंड ग्वादार पोर्ट से आके सीपैक से लेके सीधा ये ऐसे घुस सकते हैं थ्रू ये, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट रूट मिल जाएगा, ठीक है, विद और ये एरिया भी पाकिस्तान ने सीड कर दिया है, सक्शगम वैली। तो ये सीधा सीपैक से कनेक्ट होके, राइट, ये इनको एक शॉर्ट एक्सेस मिल जाएगा लैंड वाला, ठीक है, विच चाइना वांट्स। ये है स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस, एल्स इट वुड हैव बीन अ क्लोज्ड डोर, it would have been a closed door for, you can say, यहाँ पे for China, ठीक है। तो इट इज, और जबकि जियो स्ट्रैटेजिकली ये कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, ठीक है, राइट। सो चाइना ने बहुत ज़्यादा गेम सही से खेला है, ठीक है। वाई इट वांट्स दैट एरिया, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। प्लस यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, ओवर हियर पीपल लिव, ओवर हियर इट्स एन आइसोलेटेड लैंड। यहाँ चाइना कुछ भी बदतमीजी करेगा, पीपल विल रिवोल्ट, यहाँ कोई लोग ही नहीं है, ठीक है। एंड चाइना एंड पाकिस्तान कैन कोल्यूट टुगेदर, यहाँ क्या मिलेगा उस एडवांटेज, कुछ भी नहीं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अक्साई चेन। अक्साई चेन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, ठीक है, राइट। इट प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक, इट इज लोकेटेड एट अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ठीक है। इट प्रोवाइड एक्सेस वेरी क्लोज टू सीपैक, ठीक है। इट कनेक्ट्स which can later be connected to the Gwadar port, ठीक है। So this is what is the, you can say, कहानी 1962 का वॉर इस वजह से होता है, ठीक है। चाइना कैप्चर्ड अक्साई चेन, ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया, राइट, एंड ठीक है, दैट इज हाउ द स्टोरी इज, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मिलिटराइज कर दिया उस रीजन को, ठीक है, एंड ठीक है, ये कहानी, ठीक है, राइट। तो ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है, ओके फाइन। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट, तो ये हमारी वेस्ट की कहानी हमने सुनी, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, राइट। अब LAC को भी लेके, दिस इज व्हाट इज LAC, ठीक है, दिस इज व्हाट इज LAC, ठीक है, यहाँ पे लेके ये LAC को लेके ये है, दिस इज LAC। अब दिस LAC इज डिस्प्यूटेड, ठीक है, LAC इज डिस्प्यूटेड इन द सेंस दैट दिस इज नॉट ड्रॉन ऑन मैप, ठीक है, दोनों साइड के अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, राइट। इंडिया कंसिडर्स LAC टू बी अराउंड 3500 किलोमीटर्स, जबकि चाइना कहता नहीं, इट्स ओनली अबाउट 200 किलोमीटर्स, ठीक है। तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन को लेके, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सर ये LAC वॉर के बाद आया था क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। इट, तो LAC सेपरेट्स द इंडियन टेरिटरी फ्रॉम द चाइनीज कंट्रोल्ड एक्साई चेन, ठीक है, राइट। तो चाइना डजंट बिलीव, मतलब इसको एग्जैक्ट जो इंडिया LAC कहता है वो चाइना LAC नहीं मानता। जैसे LOC को लेके इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वो है एक यूनिवर्सल वो है, ठीक है, जो इधर वाली लाइन है, ये देखो, ये है LAC, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, दिस इज LAC एंड दिस इज LOC, ठीक है। तो LOC को लेके इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में काफ़ी कंसेंसस है, ठीक है, छोटा मोटा इधर उधर होगा, ठीक है, बट LAC को लेके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है, ठीक है, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेके, एंड दिस इज द रीजन दैट गलवान वैली हैपेंड अभी, ठीक है। तो जब चाइना को सताना है तो इट विल स्टार्ट इंट्रूडिंग ऑन दिस LAC फॉर द सिंपल रीजन इज दैट ये तो डीमार्केटेड है नहीं, तो बीच में आके, हम कहते हैं ना, बीच में आके कुछ चुल्ल करना, ठीक है, राइट, वही है। तो दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू इंस्टिट, राइट। सो अभी रिसेंटली व्हाट हैपेंड, इंडिया चेंज द जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस, राइट, ठीक है। तो ये आके अग्रेशन करने लग गया, ठीक है। इंडिया वॉज कमिंग मोर एंड मोर क्लोजर टू USA, इंडिया ज्वाइन द क्वाड, ठीक है। तो चाइना, इंडिया डिडंट ज्वाइन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना, ठीक है। तो बस चाइना ने भी फिर शुरू कर दिया, ठीक है। तो प्लस चाइना को हटानी है नज़र फ्रॉम कोविड एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन्होंने बॉर्डर पे नेशनलिज्म का, फेक नेशनलिज्म शुरू कर दिया,
ठीक है. So you can say that is how the situation is. ठीक है. अब जैसे गलवन वैली अभी जो रिसेंटली हुआ, ठीक है, उसमें क्या था, ठीक है, कि यहाँ तक क्लेम था, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि इस टाइप से अगर है तो पहले, ठीक है, यहाँ तक क्लेम कर रहे थे, अब थोड़ा सा और आगे तक क्लेम कर दिया तो इतना एरिया और क्लेम करने लग गए. ठीक है, ये ऐसे ऐसे माउंटेन्स बने हुए हैं. ठीक है, राइट, इस टाइप से. तो ये पूरा एरिया अब चाइना यहाँ से अपनी ट्रूप्स को लेके यहाँ तक आ गया कि ये भी एरिया हमारा है. ठीक है, 8 किलोमीटर्स आगे आ गए हैं. ठीक है, राइट. तो ये सारी की सारी स्टोरी है. ठीक है, जो मतलब है. ठीक है, तो जैसे जैसे दिस इज़ द LAC, दिस इज़ द LAC, तो यहाँ पे रुकना चाहिए था तुम्हें, अब तुम यहाँ पे आ गए हो, अंदर घुस गए LAC के. ठीक है, राइट. एंड दैट लेड टू यहाँ पे फिर स्टैंड ऑफ हो गया. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना. ठीक है. ठीक है, तो चाइना इज एंड दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड एज सलामी स्ट्रैटेजी. ठीक है, धीमे धीमे आगे बढ़ना, छोटी छोटी पीस ऑफ लैंड को लेते रहना. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सलामी स्ट्रैटेजी. पढ़ते होगे, आता रहता है. स्लाइसिंग, स्लाइसिंग, छोटी छोटी निबल करते रहना, आगे बढ़ते रहना, थोड़ा 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 बढ़ते रहना. ठीक है. ठीक है, सो मोर एंड मोर ये कर रहे हैं एंड दैट इज व्हाट लेड टू द वो गलवन वैली क्राइसिस. ठीक है, एंड वी हैव सीन दैट इन 2019, ठीक है, एंड एज वेल एज 2020 we see a sharp upsurge in intrusion of the Chinas, and 75 से 80% का rise है as compared to last year. ठीक है, and most of them intrusions are in the western sector, that is Ladakh. ठीक है, right. And what are the reasons, अगर कोई पूछे what are the reasons for these Chinese intrusion, so first and foremost is undemarcated LAC. ठीक है, प्लस यू फाइंड वेरी रफ और यू कैन से अनड्यूलेटिंग टेरेन. वहाँ पे टेरेन अगर आप देखो, पहाड़ है, माउंटेन्स है, इस टाइप का आपको दिखाई देगा. ठीक है, अनइनहैबिटेड लोग रहते नहीं है वहाँ. ठीक है, ये है. यू फाइंड अग्रेसिव नेशनलिज्म ऑफ चाइनाज, जाई जिनपिंग का. ठीक है, वो जो उनके चाइनीज प्रेसिडेंट है उनका. ठीक है, यू फाइंड दैट चाइना वांट्स टू remove or divert the attention from COVID crisis. ठीक है, so that ध्यान कहीं भटकाया जा सके. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान. ठीक है, तो ये चीज पता होना चाहिए, राइट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ एक चीज ऑल्सो, व्हाई इज टिबेट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर चाइना? अगेन बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन. ठीक है, एज आई टोल्ड यू, अभी हमने जो ड्रॉ करा था, बिकॉज ऑफ रिच वाटर रिसोर्सेस. चाइना की 80% वाटर रिसोर्सेज आर फ्रॉम टिबेट. You find origination of big rivers, Indus, Brahmaputra, everything is for Tibet. And China is a very water scarce nation. अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, वाटर डिस्प्यूट जब हम डिस्कस करेंगे कल, ठीक है, तब हम इसमें बात करेंगे दैट चाइना के पास पानी की बहुत किल्लत है. ठीक है, तो अगर तिब्बत चला गया तो उसकी मोस्ट ऑफ द country's population will be facing severe water crisis, and it is actively going for building of pipelines. It is actively going for building of artificial lakes, and it is trying to divert a lot of water
of all these rivers into क्या, into the mainland China, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, राइट, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, राइट, एंड ये हम लोगों ने यहाँ पे बात करी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्ट में जो इशू है विद रिस्पेक्ट टू मैकमोहन लाइन, ठीक है। सो नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर डिस्प्यूट का क्या है, चाइना डज नॉट बिलीव दैट अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। वो अरुणाचल प्रदेश की सॉवरेंटी को नहीं मानता, इट गिव्स स्टेपल्ड वीजा फॉर पीपल गोइंग टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और गोइंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू चाइना, ठीक है। एंड ठीक है, क्योंकि अगर एक बार परमानेंट वीजा दे दिया तो इसका मतलब आप मान लोगे कि दूसरी कंट्री का पार्ट है, ठीक है, राइट। सो अब मैकमोहन लाइन की क्या कहानी है अरुणाचल प्रदेश में जो है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू जो चाइना, यहाँ पे जो टिबेट था एंड आपका इंडिया है, ठीक है। सो इट वॉज सेड दैट दिस मैकमोहन लाइन इट सेपरेट्स इंडिया चाइना, ठीक है। एंड दिस मैकमोहन लाइन वॉज ड्रॉन इन 1914 में शिमला अग्रीमेंट हुआ था, सिंपल एज दैट। एंड इन द शिमला अग्रीमेंट, ठीक है, टिबेट का रिप्रेजेंटेटिव आया और इधर से ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव आया, एंड दे टुगेदर ड्रू दिस, एंड उसके अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया। दोनों ने एक्सेप्ट करा, टिबेट ने भी, एंड इट वाज गेम ओवर, बोथ ऑफ दीज एक्सेप्टेड दिस, ठीक है, बोथ ऑफ दीज एक्सेप्टेड दैट टिबेट is a part of Arunachal Pradesh is a part of India, right? This is what you can say the McMahon line says, Simla agreement says, but China says कि sir, is Tibet an autonomous region, autonomous country? No sir. Then how has he got the right to participate in any negotiations on behalf of China? Just tell me this. The answer to this is no. Take it. Right. So, can I say, was China a part of Simla agreement? No, sir. Take it. Right. Plus, this McMahon line has been drawn by imperialist powers who wanted to draw all these lines for their own benefit. So why should I consider this? ठीक है, right? So sorry sir, we won't accept this, ठीक है। Now what are India's claims? India says, look sir, look, McMahon line is being accepted not as a part of Shimla agreement but as a part of 1954 पंचशीला अग्रीमेंट। पंचशील अग्रीमेंट का पार्ट है सर, ठीक है, नॉट द शिमला अग्रीमेंट, ठीक है, राइट। एंड इंडिया एक्सेप्ट्स टिबेट एज अ पार्ट ऑफ 1954 पंचशीला अग्रीमेंट, राइट। बिफोर दैट जो था टिबेट ऑटोनॉमस रीजन था। तो इवन इफ यू वांट टू गो फॉर शिमला अग्रीमेंट की सर हम तो शिमला अग्रीमेंट को मानेंगे, स्टिल then we don't accept Tibet, because Tibet we are accepting from 1954 as your part. Before 1954 it was an autonomous region, simple as that, है ना, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है, मैकमोहन लाइन सही है। सेकंड, you are saying that this line was drawn by British imperialist, understood, बिल्कुल, but India did not follow the imperialist policy, right? ठीक है,
वी आर नॉट एन imperialist nations, ठीक है. So why would we want to go for intrusion? Why will we follow this? तो ये चीज ध्यान रखना. This is what the thing is. But still it is under the control of India right now. ठीक है. Is it clear? ठीक है. अच्छा, अब कहानी तिब्बत की भी क्या है, अगर किसी को इंटरेस्ट है कि सर हाउ इज चाइना क्लेमिंग ऑन तिब्बत, जबकि इतने साल से तो इट वाज एन ऑटोनॉमस रीजन. ठीक है, तो सडनली चाइना को तिब्बत, ऑन व्हाट बेसिस इट इज क्लेमिंग? सो चाइना सेज दैट लुक सर, तिब्बत had surrendered. Tibet had surrendered its sovereignty way back to us. How? Tibet followed Buddhism. Yes, sir. Buddhism is based on non-violence. Yes, sir. So Tibet generally did not keep any kind of army वगैरह with him. But Nepal once attacked Tibet. ठीक है, way back, and Tibet went for help with China. China said, sir, we cannot help until unless you become a part of our country. ठीक है. So Tibet surrendered the sovereignty to China. That is the reason China says Tibet is a part of China. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. ठीक है. So that is what the China portrays the story of Tibet. This we should be understanding. ठीक है, राइट. तो ये चीज यहाँ पे वी शुड बी नोइंग अबाउट. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द नॉर्थ ईस्ट जो सेक्टर है उसके बारे में ये चीज पता होनी चाहिए. दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. ठीक है, फाइन फाइन. सो देन आफ्टर ऑल दिस इंसिडेंट्स हैपेंड. ठीक है, अच्छा, ठीक है. प्लस व्हाई इज चाइना सो मच इंटरेस्टेड इन ऑल दिस रीजन? ठीक है, राइट. सो देयर इज अ पॉलिसी ऑफ माओ, the first premier, the founding father of China. Mao had the policy of, ठीक है, right hand and five finger policy. That he saw Tibet as the right hand and five fingers, that is Bansal, Bansl, as the finger of this Tibet. ठीक है, and it was important for China to dominate them. Bhutan, Arunachal Pradesh, Nepal, Sikkim and Ladakh. ठीक है, Bansal, Bansl. ठीक है. So these were the five fingers of Tibet. ठीक है, right. So until unless these five fingers are controlled by Tibet or entered into the hands of China, ये नहीं है. ठीक है, there will always be danger in Tibet. ठीक है. तो these are the five fingers. तो five finger policy of Mao है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चाइना को अपना दबदबा रखना है. तो कभी कल को when you are writing an answer कहीं लिखना पड़ जाए फाइव फिंगर पॉलिसी वगैरह तो लिख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, राइट. सो दिस वॉज, ठीक है, दिस वॉज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया. ठीक है, ओके, राइट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द स्टोरी आफ्टर दैट. ठीक है, इन द सेंस कि 1962 वगैरह में वॉर वगैरह हुआ. ठीक है, उसके बाद की क्या कहानी है, राइट. सो then in 1980 the relations, there was a kind of cold peace, एक kind of cold war हो गया, cold war between India and China, and no one talked, no relations were there, status quo रहा. ठीक है, right. but ठीक है, in 1988 finally, ठीक है, Rajiv Gandhi ji, he visited China and relationship started to change a bit to break the ice. ठीक है, right. ठीक है, but somehow it could not succeed much, and finally in 1993 with the PV Narasimha Rao's visit, ठीक है,
It resulted into peace and tranquility along border. This was the agreement which was signed, peace and tranquility agreement on border. And it is because of this region, this agreement, LAC became peaceful. ठीक है, because India had interpreted कि now USSR is going, वो डिक्लाइन होने वाला है, एंड चाइना विल राइज, एंड सेकेंडली इंडिया की लुकीस्ट पॉलिसी भी है, ठीक है, सो वी नीड बेटर रिलेशंस, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई यू सी 1993 में ये होता है. इन 2003 वाजपेयी जी विजिट्स, ठीक है, एंड देन दैट लीड्स टू अपग्रेडेशन ऑफ द पार्टनरशिप इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. ठीक है, राइट. चाइना रिकग्नाइज सिक्किम, अभी तक तो सिक्किम को भी रिकग्नाइज नहीं कर रहा था, बट इन 2003 चाइना रिकग्नाइज सिक्किम, ठीक है, राइट. दे अग्रीड टू सेट अप मैकेनिज्म ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स टू सॉल्व ऑल दीज बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ठीक है, इस टाइप की बात चली, ठीक है, राइट. एंड ठीक है, दे विल बी, मतलब कोशिश करी जाएगी कि we'll try to demarcate the LAC on the ground, ठीक है, there will be exchange of maps, ठीक है, इस टाइप की बात चली, ठीक है, राइट. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. प्लीज नोट, इन 1990s, ठीक है, चाइना वॉज वेरी वेरी ईगर टू सॉल्व ऑल दीज अग्रीमेंट्स, ठीक है, मतलब विद इंडिया, कि हाँ भाई हो जाए, बिकॉज चाइना एंड इंडिया की पावर weren't that big, गैप ज़्यादा बिग नहीं था, बट टुडे द गैप हैज़ वाइडली इंक्रीज्ड एंड चाइना इज इन नो मूड नाउ टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट. सिंपल एज दैट, ठीक है, राइट, राइट, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पावर असिमेट्री, बहुत सारी पावर असिमेट्री है, ठीक है, दिस वी शुड बी नोइंग, ठीक है, right. And we see now Chinese rise has become a serious threat. There is a growth of China Pakistan axis. We see India and Russia relations are not that strong, okay. We see Russia China Pakistan axis coming up together, ठीक है, एंड इसीलिए आप देखोगे इंडिया इज ट्राइंग इट्स बेस्ट, किसी भी तरीके से यूएस वगैरह से वी कैन गो फॉर अ बेटर पार्टनरशिप plus increase this internal development, ठीक है, right. It is predicted that there is a huge probability of India China war in Indian Ocean, हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे याद होनी चाहिए, राइट, ठीक है. दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ यहाँ पे मतलब विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, चाइना, ठीक है, ये पता होना चाहिए, इंडिया एंड चाइना, राइट, ठीक है. प्लस देयर इज ऑल्सो अ बुक बाय श्याम सरन, ठीक है, राइट. नाउ श्याम सरन book called as How India Sees the World. Now in this particular book it says India sees this world as a part of a big lotus. ये पूरे वर्ल्ड क्या है, एक बड़ा लोटस है, एंड ठीक है, राइट, ठीक है, इंडिया इज जस्ट अ पेटल ऑफ दिस, इसका मानना है, बट चाइना इट सीज एज अ सेंटर ऑफ दिस लोटस, इट सीज इट सेल्फ एज द मिडिल किंगडम, इट वॉन्ट्स टू रिवाइव ऑफ इट्स लॉस्ट ग्लोरी, ये चीज देखते हैं, राइट, ठीक है, ये चीज है. तो चाइना इज वेरी वेरी अग्रेसिव, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, बट India sees the world as a part of a petal. India is one petal, but China wants to become the center of the world.
ठीक है। राइट। अब गैप इंडिया चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात करी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिया चाइना एंड क्या बोलते हैं, द बॉर्डर डिस्प्यूट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राइट, पूछा भी जा चुका है टाइम एंड अगेन, तो ये चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू, ठीक है, अक्साई चेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द चाइना। ठीक है, इट कनेक्ट्स तिब्बत विद द जिंगजियांग, एंड जो उनका जिंगजियांग प्रोविंस है, ठीक है, जिंगजियांग प्रोविंस में काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी है। तो अगर अक्साई चेन उनके पास है तो क्विकली तिब्बत से क्या भेज सकते हैं, दे कैन सेंड ट्रूप्स टू द जिंगजियांग टू कंट्रोल द इंसर्जेंसी, एल्स पूरा घूम के जाना पड़ेगा। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट इट, ठीक है, राइट, एल्स पूरा यहाँ से ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। अगर ये है तो दीदे भेजी जा सकती है। ठीक है, राइट, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। हम्म, ठीक है, सो इंडिया डिड नॉट डील वेल विद चाइना, इट शोज अ लैक ऑफ स्ट्रैटेजिक कल्चर वे बैक, ठीक है, नेहरूवियन एरा में। ठीक है, एंड इसीलिए इट वाज अ वेरी बिग फेलियर ऑफ द नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि कैसे नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा फेलियर था, दैट वी कुड नॉट इंटरप्रेट चाइना वेरी वेल। ठीक है, इट शोड दैट इंडिया लैक्ड स्ट्रैटेजिक कल्चर। ठीक है, राइट, तो ये चीज़ है। इवन वी कुड हैव गॉन फॉर कि यार चलो ठीक है, अगर हम ये आपका टिबेट मान रहे हैं, आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हमारा पार्ट मानो। चाइना डजंट बिलीव पीओके इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट बिलीव्स इट्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये चीज़ भी वो गलती हुई है। ओके, Narasimha Rao, this is also we have discussed। ठीक है, देन इन 2013 एक बीडीसीए साइन हुआ था, बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन अग्रीमेंट। ठीक है, दिस वाज आल्सो, वेट अ सेकेंड, ठीक है, व्हेन मनमोहन सिंह जी विजिटेड, ठीक है, चाइना, बिकॉज देयर वर मेनी इंसिडेंट्स इंक्रीजिंग, इनकर्शंस हो रहे थे। सो in 2013, ठीक है, BDCA was signed, Border Defense Cooperation Agreement, under which under which a lot of confidence building measures were to be taken। ठीक है, राइट, एक पेट्रोलिंग होगी, ठीक है, मतलब जॉइंट पेट्रोलिंग वगैरह की बात करी गई थी, नो वायलेंस यूज होगा, कोई वायलेंस वगैरह नहीं होगा। ठीक है, रेगुलर मीटिंग्स बिटवीन द ऑफिशियल्स, ऑल दिस विल हैपन। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, एंड वी विल हैंडल डिफरेंस विथ मैच्योरिटी। ठीक है, राइट, वी विल कोलैबोरेट ऑन मल्टीलेटरल फोरम, स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो दिस इज अबाउट, ठीक है, दिस इज अबाउट द इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स। ठीक है, और गनवल वैली वाले को भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, राइट, अब ये हम लोग वैसे ही सिमिलरली नाउ चाइना हैज नाउ स्टार्टेड ट्रबलिंग भूटान, एंड रिसेंटली अब क्या कर दिया है चाइना का, एक और अगर एग्जांपल लिखना हो तो चाइना हैज क्लेम्ड द साक्तांग वैली, साक्तेंग, ये जो भी से बोलते हैं, साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ पार्ट ऑफ चाइना। नाउ दिस लाइज इन भूटान। ठीक है, दिस लाइज इन भूटान। ठीक है, राइट, एंड it is also seen as a technique to pressurize Bhutan, pressurize India। ठीक है, राइट, क्योंकि भूटान डज नॉट हैव ऑफिशियल टाइज विद चाइना। हम ये पढ़ेंगे, जब इंडिया भूटान पढ़ेंगे ना, तब ये वाला इशू दोबारा आएगा, डोंट वरी। ठीक है, सो इट इज इंक्रीजिंग मोर एंड मोर डिस्प्यूट्स
with its neighbors so that it could pressurize India. ठीक है. Right. Similarly, China is building new fast rail projects near Arunachal Pradesh सो दैट कल को अरुणाचल प्रदेश में जल्दी से ट्रूप भेजने हो भेज सकते हैं, जबकि इंडियन साइड में इतने अच्छी रोड्स वगैरह नहीं है. ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना. ठीक है, इट इज बिल्डिंग फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स इन अरुणाचल प्रदेश, नियर अरुणाचल प्रदेश, हाई स्पीड रेलवे. ठीक है, एंड दैट विल लिंक अरुणाचल प्रदेश एंड इट्स टिबेट रीजन. ठीक है, राइट. राइट, सो इंडिया हैज ऑल्सो कम अप. India went for the Bogeybill Bridge. ठीक है, right, it went for the Bogeybill Bridge. ठीक है, then India or the Border Roads Organization, it constructed a DAP-JO bridge. ठीक है, a bridge on Subansiri River in 27 days. ठीक है, it went for all weather सेला पास टनल in अरुणाचल प्रदेश, सेला पास टनल बनाया है. तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, 57 रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, ITBP लगी हुई है. ठीक है, इन सब के साथ मिलके हेलीपैड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, आउटपोस्ट आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, तो ये फटाफट हम कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, सो दैट कल को अगर अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी हुआ तो क्विकली मिलिट्री कुड बी मोबिलाइज्ड. ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज द इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स विच वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, डोकलाम क्राइसिस वी विल बी सीइंग इन भूटान. ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे टाइम वगैरह से पहले था. ठीक है, मतलब जो डोकलाम का आते रहता है. ठीक है, अब तो हो गया 17-17 में डोकलाम था, 17-18 वगैरह में. ठीक है, बट ठीक है, डोकलाम क्राइसिस को विल बी सीइंग व्हेन विल बी सीइंग इंडिया एंड भूटान. जब उसको पढ़ेंगे तो हम डोकलाम क्राइसिस और साक्तांग वैली के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेंगे. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द इंडिया एंड चाइना बॉर्डर रिलेशंस. ठीक है, नाउ टुमारो वी मीट. ठीक है, एंड देन वी डिस्कस व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंडिया एंड चाइना वाटर डिस्प्यूट्स को भी डिस्कस करेंगे बिकॉज अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ऑन. ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस. एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. सी यू टुमारो, सेम टाइम, सेम प्लेस.